Hello students, I hope you all are doing well. In this video, we will discuss about what is the mechanism of respiration in human beings as well as what is the compact mechanism of respiration in plants. So, at first, what do you mean by this word respiration? We have already discussed in the previous video that respiration is a process through which energy is released in the form of ATP. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. एंड वी ऑल नो व्हाट इज एटीपी. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी हैव टू मेजर डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर. व्हेन वी हैव टू मेजर वाटर वी यूज द SI unit liter. Therefore, as per for energy, ATP is the energy currency. We have to measure energy in the ATP. Therefore, what is respiration? Respiration is a process through which energy is released in any organism. किसी भी organism में जिस process से energy release होती है वही process क्या कहलाता है? Respiration कहलाता है. अब respiration एक single topic है कि इसके types हैं. तो respiration has two types. What are these? These are aerobic respiration and anaerobic respiration. What is the basic difference between these two words, aerobic and anaerobic? Aerobic respiration is derived from a word aero. Aero means air. And respiration means releasing of energy. That means it is a type of respiration which takes place in the presence of air. ऐसा respiration जिसमें एयर का प्रेजेंस नेसेसरी हो, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाई? बिकॉज द वर्ड एरो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एयर. एरो वर्ड की मीनिंग क्या होती है? एयर होती है. इस कारण ऐसा रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ एयर में हो, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स. In human beings, aerobic respiration takes place in mitochondria. As we all know, mitochondria is the powerhouse of the cell. What is anaerobic respiration? Before aero, a prefix came, that is N, and that is absence. The respiration which takes place in the absence of air. ऐसा respiration जिसमें air की जरूरत हो ही ना, तो ऐसे respiration को क्या कहेंगे? ऐसे respiration को anaerobic respiration कहेंगे, है ना, जिसमें air की जरूरत ही नहीं है. Air is not required in this respiration. Without air, without oxygen, energy will release. और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ना. तो ये साइट याद रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ. व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है? द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज योर साइटोप्लाज्म. अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो ह्यूमन बींग्स में होता है या फिर जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें होता है. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होता है. फॉर एग्जांपल, ईस्ट. व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंजाई व्हिच परफॉर्म रेस्पिरेशन एनारोबिकली, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर. सो एक्चुअली aerobic respiration releases energy in more amount. Huge amount of energy is released in the aerobic respiration, while in anaerobic respiration very less amount of energy is released. So there is basically 3-point difference between the aerobic respiration and anaerobic respiration. What are they? In aerobic respiration, respiration occurs in the presence of air. In anaerobic respiration, respiration occurs in the absence of air. Aerobic respiration takes place in mitochondria, while anaerobic respiration takes place in cytoplasm. In aerobic respiration, more energy is released compared to anaerobic respiration. अब ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया. क्या एरोबिक रेस्पिरेशन की मीनिंग क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की मीनिंग क्या है. अब पाथवेज इन द सेंस क्या, आखिर एनर्जी जो निकलेगी वो किसी ना किसी चीज से निकलेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट एनर्जी फ्रॉम अ कोल देन वी हैव टू बर्न इट. हमें क्या करना पड़ेगा? कोल को जलाना पड़ेगा, तभी उससे एनर्जी निकलेगी, है ना. मतलब एनर्जी निकालने के लिए कोई ना कोई फ्यूल की जरूरत जरूर होती है. तो ह्यूमन बॉडी में फ्यूल क्या है? ह्यूमन बॉडी में फ्यूल है ग्लूकोज. क्यों? ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन हो गया और डाइजेशन के बाद क्या बन गया? ग्लूकोज.
एंड दिस ग्लूकोज इज फ्यूल फॉर अस। ये ग्लूकोज क्या है? फ्यूल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी फ्यूल से क्या मिलेगी हमको? एनर्जी मिलेगी। अब इस फ्यूल से एनर्जी कैसे मिलेगी, इसी को जानना है। इसी के 3 पाथवे होते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स में 2 पाथवे और 1 पाथवे ईस्ट का। अब देखो ध्यान से होता क्या है आखिर। अब ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे पहले हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज एंड ट्रांसपोर्ट इट विद द हेल्प ऑफ ब्लड थ्रू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहले ये ग्लूकोज सेल में पहुंच जाता है, और सेल में भी कहां पहुंचता है? सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है ना। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होके 2 ग्लूकोज के आधे आधे टुकड़ों में बट जाता है। उस हाफ ग्लूकोज को क्या कहते हैं? पायरुवेट कहते हैं, है ना। तो मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर हमने यहां पर लिया है, then 1 glucose is divided into how many pyruvates? 2 pyruvates. Why? Because in cytoplasm the physical breakdown of glucose takes place and the one molecule of glucose break down to form 2 pyruvate. 2 pyruvate बन गए। ये तीनों ही पाथवे के लिए कॉमन है, मतलब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों ही केस में होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले केस में भी होता है। आखिर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस क्या है, आगे पढ़ेंगे हम। तो अब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं पहले। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, एंड अगेन दिस 2 पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही पायरुवेट कहां जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेकेंड इज योर वाटर, एंड थर्ड इज योर 38 एटीपी। मतलब एक बार जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें 38 एटीपी निकलती है। इस कारण जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि जहां पे रेस्पिरेशन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है ना। इसी यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नॉस्ट्रिल से क्या होती है? बाहर आती है। और कितनी एटीपी एनर्जी निकलती है? 38 एटीपी। अगेन आई विल से, फर्स्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 moles of pyruvate in cytoplasm. Afterwards these 2 pyruvates are converted into carbon dioxide, water and 38 moles of ATP in mitochondria. ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन हो गई, है ना। सेकेंड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहां से यहां तक तो कॉमन बात है, ग्लूकोज आएगा साइटोप्लाज्म में, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 moles of pyruvate. Afterwards in anaerobic respiration in cytoplasm only, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हुआ था? इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली, एंड एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज, 1 alcohol is released, that is called ethanol. What is the formula of ethanol? C2H5OH. And only 2 moles of ATP is released. That's why in the point difference we consider in aerobic respiration more energy is released, in anaerobic respiration very less energy is released. Why? Because we seen just now in aerobic respiration 38 ATP molecules are there, while in anaerobic respiration only 2 ATP molecules are there. So in yeast, when respiration takes place, then as a byproduct ethanol is released. That's why this process is also known as fermentation. What is fermentation? Fermentation is a process of formation of ethanol by or alcohol by using yeast. yeast cell जब respiration करती है तो ग्लूकोज आता है सबसे पहले उसकी सेल में, ग्लूकोज 2 moles of pyruvate में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट क्या है? ग्लूकोज का हाफ, है ना। एक ग्लूकोज 2 टुकड़ों में बंटता है, उन दोनों टुकड़ों को क्या कहते हैं? पायरुवेट कहते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन नहीं होगा, कहां होगा? साइटोप्लाज्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन हमारे केस में क्या होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो ईस्ट है उसके केस में क्या होता है? एक एल्कोहल बनता है जिसको कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है।
इसी इथेनॉल के प्रोडक्शन को एक प्रोसेस का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दैट्स व्हाई वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाई ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। ब्रीविंग दैट इज एल्कोहलिक इंडस्ट्री, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसको बनाने के लिए हम ईस्ट को यूज करते हैं, है ना। तो ईस्ट को एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं? इस कारण करते हैं क्योंकि ईस्ट में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ही ईस्ट क्या करेगा, अपना रेस्पिरेशन करेगा, वैसे ही उसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा और इसी अल्कोहल को ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में, एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में बिवरेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये दोनों केस तो समझ में आ गया। एक केस हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड अनदर केस इज फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज दिस थर्ड केस? ये तीसरा केस किस में होता है? तो तीसरा केस ह्यूमन बींग्स में ही होता है, लेकिन ये कब होता है? ये हमारे ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स में होता है। कब? जब हम बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत देर खेलते हैं, या फिर हम स्टेयर्स से अप डाउन बहुत फास्ट करते हैं, या फिर कोई एक ऐसा एथलीट है जो बहुत फास्ट अपने एथलेटिक्स करता है, उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ने से जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मसल सेल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना। इस रेस्पिरेशन में एक नया कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड, है ना। और लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी तो निकलती है ऑब्वियसली क्योंकि रेस्पिरेशन है, लेकिन जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं ना, हम स्टेयर्स से अप डाउन करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि हमारे मसल्स में पेन हो रहा है ना। या फिर हम बहुत तेज रनिंग करते हैं और जैसे ही रनिंग करके रुकते हैं तो ऐसा लगता है पूरी बॉडी में पेन हो रहा है ना। तो दैट पेन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड? फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज C3H6O3। This C3H6O3 is responsible for muscular cramps and muscular pain। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि why athletes feel pain or cramps after performing heavy exercise। कोई एथलीट या फिर कोई कॉमन पर्सन भी जब बहुत हेवी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेता है तो उसकी बॉडी में पेन आता है, उसके मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। क्यों? तो दैट occurs due to lack of oxygen, because in lack of oxygen glucose converted into pyruvate, afterwards in lack of oxygen one additional compound is formed, that compound is called lactic acid. What is the formula of lactic acid? C3H6O3, and due to this compound muscular cramps, muscular pain occurs. So this is all about the pathway of respiration. As we all know, plants are also living creature. Therefore, plants also perform the process of photosynthesis, and plant uses oxygen and release out carbon dioxide in the process of respiration. That's why in plants we consider respiration is just opposite of photosynthesis. Okay, I hope you understood the concept of respiration. That's all for this video. Thank you.